الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ زبان سے جو بات بھی نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، زبان سے جو بات بھی نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں پر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دین اور ہماری زندگی کے عنوان سے آپ حضرات درس سن رہے ہیں۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، تو 9 درس آپ اس عنوان سے سن چکے ہیں، آج اس کا 10واں درس ہے کہ اسلام جو ہم لائے ہیں تو اسلام ہم سے کن کن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، تو وہ جو ہے اس کو ہم نے سننا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کھیل تماشا اتوار لگ جاتا ہے، ہم سنتے ہیں کانوں کا ذائقہ اور چلے جائیں۔ جو سنیں اس پر عمل کریں، لفظوں کو یاد کریں کہ آج کا درس ہم نے کیا سنا ہے، یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو گویا کہ اسلام ہماری زندگی میں پورا نہیں ہے۔ پچھلے 9 درس جو آپ نے سنے ہیں، اگر غور کیا جائے تو اس میں ہم بالکل زیرو ہیں۔ تو آج کا جو درس ہے اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تم سب یا تم میں سے کوئی ایک مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے تو میں مدنی کریم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 2 چیزوں کی ضمانت اگر دے دو تو میں مدنی کریم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ صحابہ نے کہا، کیونکہ وہ تو ایسے تھے جب سنتے تھے تو فوراً عمل کرتے تھے، ہم نہیں کرتے کیونکہ ہمارے عمل کرنے کی نیت ہی نہیں ہوتی۔ وہ سنتے تھے، عمل کرتے۔ یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیں وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ہم سنیں گے بھی صحیح، ان پر عمل بھی کریں گے۔ اور صحابہ کرام کی شان بھی یہی ہے، اللہ پاک کی قسم مدنی کریم کی زبان سے جو لفظ نکلتا تھا، ابھی صحابہ کرام گھر نہیں پہنچتے تھے اس پر پہلے عمل کیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کی شان ہے۔ اس لیے حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا، کمل وحی، اور میرے یارو وحی مکمل ہو گئی، آج علم مکمل ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر، اللہ نے فرمایا تیرے یار فرش پہ گواہی دے رہے ہیں، میں رب رحمان عرش سے گواہی دے رہا ہوں۔ کمل وحی و کمل علم، ابھی اللہ کے نبی نے فرمایا کمل وحی، علماء نے لکھا ہے ابھی وحی کی یا ختم نہیں ہوئی۔ سارے صحابہ نے فرمایا، عرض کی، یا رسول اللہ تمل علم و تمل عمل، اگر وحی اور دین اور اگر علم مکمل ہو گیا ہے، اے مدنی کریم رب کعبہ کی قسم ہے ہم سارے یاروں کا عمل بھی مکمل ہو گیا ہے۔ یہ ہے، سنتے تھے پھر عمل کرتے تھے۔ یا رسول اللہ بتائیں وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ما بین لیتہ و بین رجلی، توجہ سے سنو، فرمایا کہ جسم کے اندر 2 لوتھڑے تمہارے ایسے ہیں، اگر ان 2 میں سے تم نے مجھے ان کی ضمانت دے دی تو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا چیزیں ہیں اللہ کے نبی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ما بین لیتہ، ایک وہ جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، اس کی ضمانت مجھے دو، یہ زبان کبھی جھوٹ نہیں بولے گی، زبان غیبت نہیں کرے گی، زبان غلط گواہی نہیں دے گی، زبان جھوٹے بندے کا ساتھ نہیں دے گی، زبان کسی کا دل نہیں دکھائے گی، یہ زبان تلوار نہیں بنے گی بلکہ یہ پھولوں کا ہار بنے گی۔ یہ اگر ضمانت دیتے ہو زبان کی
और माँ बैन रिजलई, और एक चीज वो है लोथा जो दो टांगों के दरमियान शर्मगाह है। इन दो चीजों की जमानत तुम मुझे दे दो, मैं मोहम्मद तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। आगे सारे साहबा ने कहा या रसूलल्लाह जमानत हो गई, हम जबान से किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे और हमारे कदम भी गलत नहीं उठेंगे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया उस शख्स के लिए जन्नत की जमानत है। सबसे पहले जबान को जिक्र किया, फिर माँ बैन रिजलई, फिर उस लोथवे को जिक्र किया जो दो टांगों के दरमियान यानी शर्मगाह है। जबान को पहले जिक्र करने की वजह यह है कि जबान ज्यादा इस्तेमाल होती है। अगर वो कदम गलत उठेगा तो जब मौका मिलेगा, लेकिन जबान तो वो है बंदा मौजूद भी नहीं, घर में बैठकर मैं उसकी इबादत कर रहा हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जमानत दो, ये गलत नहीं, ये वो चीज है जबान, इसको मामूली ना समझो, ये वो चीज है जबान। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बंदा जनती अमल करता रहता है, जनती अमल करता रहता है, जनती अमल करता रहता है, हत्ता कि जनती अमल करते करते जन्नत के किनारे पहुंच जाता है। अब एक कदम जन्नत से रह गया, जन्नत के किनारे पहुंच के खड़ा है, एक कदम रह गया, लेकिन जबान से एक ऐसा लफ्ज निकालता है, जुमला, अल्लाह पाक उसको जन्नत के किनारे से उठाकर जहन्नम का ईंधन बना देता है। कहां से निकला ये लफ्ज? एक लफ्ज जन्नत के किनारे पे खड़ा है, एक लफ्ज निकला, जहन्नम का ईंधन बन जाता है। फरमाया एक बंदा जहन्नमी काम करता रहता है, जहन्नमी काम करता रहता है, जहन्नमी काम, हत्ता कि जहन्नम के किनारे पे पहुंच जाता है। एक कदम जहन्नम में गिरने से रह रहा है, लेकिन वहां खड़े हुए एक जुमला जबान से ऐसा निकालता है जो अल्लाह ताला को पसंद आता है, अल्लाह जहन्नम से निकाल कर जन्नत के अंदर पहुंचा देता है। तो कहां से निकला ये जुमला? एक ही जुमला जहन्नमी बना देता है, एक ही जुमला क्या बना देता है? जन्नती बना देता है। सिर्फ एक जुमला जबान से निकलता है, जन्नती और जहन्नमी। हदीस पाक में आता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मर्रा अला कब्र, आप एक कब्र से गुजरे और ईसा अलैहिस्सलाम के पास मौजज़ा था ये कि कब्र पे खड़े हो तो कौम बेइज़्निल्लाह खड़े हो जाओ, और अल्लाह पाक बतौर मौजज़ा दिखाते थे कब्र में अजाब हो रहा है या नहीं हो रहा। एक कब्र से गुजरे तो अजाब हो रहा है, बंदा अजाब के अंदर मुब्तला, सख्त तरीन अजाब है। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया यस्माउ सौतहु इल्ला सकलैन, फरमाया कब्र को सिर्फ गला ना समझो, इन्नमल कब्र रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नति औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार, ये कब्र जन्नत के बागों में से बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है। कब्र के अंदर से इतनी चीख की आवाज आती है, इंसानों और जिन्नों के अलावा हर चीज सुना करती है। कहो सच है, कहो क्या है? पहली मंजिल है आखिरत की। तो मर्रा अला कब्र, कब्र से गुजरे, अजाब हो रहा है। या अल्लाह ये बड़ा गुनाहगार है जिसको अजाब हो रहा है, या अल्लाह बड़ा गुनाहगार है, गुजरे अजाब हो रहा है, गुजरे अजाब हो रहा है। चले गए, काफी अरसे के बाद, तवज्जो से सुनो, जबान का जुमला, काफी अरसे के बाद फिर गुजरे उस कब्र से, और अल्लाह पाक ने बतौर मौजज़ा दिखाया कब्र जन्नत का बाग बनी हुई है। वाह अल्लाह, पहले गुजरा तो जहन्नम का अंगारे बने हुए थे और आज गुजरा तो क्या बनी हुई है? तो पूछा अल्लाह क्या माजरा है? अब सुनो क्या माजरा है। पहले कब्र जहन्नम का बाग बनी, जन्नत बनी हुई है, आप जन्नत का बाग। अल्लाह क्या मांग रहा है? अल्लाह ने फरमाया जब ये बंदा फौत हुआ गुनाहगार था, मैंने इसकी कब्र को जहन्नम का आग बना दी, जहन्नम के अंगारे बना दिए, लेकिन इसकी बीवी हामला थी। क्या थी? हामला। अब 7, 8, 9 माह के बाद उसने बच्चा जन्ना, वो बच्चा फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, बोलना सीखा, तो माँ ने उंगली पकड़कर इल्म हासिल करने के लिए किसी उस्ताद के पास बिठा दिया। आज उसके बच्चे ने पहली मर्तबा जबान से पढ़ा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बच्चे ने बस बिस्मिल्लाह पढ़ी, उसकी जबान से बिस्मिल्लाह खत्म हुई, मैंने इसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया। कैसे बना भाई? जबान के जुमला। हजरत अली रजी अल्लाह, तो इस जबान को यूं ना समझो ये जबान है, ये तीर है, ये तलवार है। क्या है? तीर। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जिरातुस सिनान लहल तयाम वला यल्ताम मा जरहल लिसान। हजरत अली का ये शेर दिल पर लिखने के काबिल है। फरमाते हैं जिरातुस सिनान लहल तयाम वला यल्ताम मा जरहल लिसान। लोगों इसको जबान न समझो सिर्फ, ये तो वो है अगर इससे जख्म लग जाए तो कभी वो जख्म नहीं सिला करता। हालांकि तीर तलवार से जख्म लग जाए वो कभी ठीक भी हो जाता है, मिल भी जाता है, लेकिन जो जबान से जख्म लगता है वो मरते दम तक कभी भी ठीक नहीं होता। इसका मतलब है तीर तलवार का जख्म कम है और जबान का जख्म क्या है? इसलिए अल्लाह ने फरमाया वला तकुल उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, फरमाया खबरदार वालिदैन बुरे हो जाएं तो कभी उनको उफ न कहना। उफ कहां से निकलता है? उफ, ये उफ क्या लफ्ज़ है? ओह, इस तरह कोई बात उफ,
उफ भी ना करना, वरना तुम्हारे सारे अमाल मुंह उठाकर तुम्हारे मुंह पे मार के जहन्नम का ईंधन बना दूंगा। तो कौन जहन्नम में ले गई? यही जबान। तो दो चीजों की जमानत जबान की, जबान को पहले जिक्र किया, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। अगर सच बोलो, गलती भी हो जाए, लेकिन जबान का सच्चा हो तो अल्लाह बड़ी गलती को भी माफ कर देता है। अगर नेकोकार हो और जबान का गलत है, झूठ बोलता रहता है, तो फिर अल्लाह उसकी नेकी को भी जहन्नम का ईंधन बना देता है। ये ज़हन में रखें। अगर सच्चा है जबान का, तो बड़ी सी बड़ी गलती हो जाए, लिख लो, अल्लाह माफ कर देता है, क्योंकि ये बंदा क्या है? जबान का क्या है? सच्चा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने यारों को बताया, और ये बात ज़हन में रखें, जब अल्लाह के नबी किसी पर हमला करते, किसी जगह जाने का इरादा करते, तो वो राज में रखते थे, कभी कभी अपने यारों को बता देते थे। तो एक खुशी की खबर थी, इसलिए यारों को बता दी। मस्जिद नबी भरी हुई, मेरे नबी ने फरमाया, मेरे यारों, तुम्हें मक्का याद आ रहा है या नहीं? बैतुल्लाह याद आ रहा है या नहीं? हजर अस्वद याद आ रहा है? सफा मरवा की दौड़ें याद आ रही? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल हो गए। कितने साल? 10 साल तलब रहे हैं बैतुल्लाह के लिए, वो बहारें, अल्लाह का घर, वो जो है हजर अस्वद को चूमना। तो मेरे नबी ने फरमाया, फिर तुम्हें मुबारक हो, आज 10 साल के बाद अल्लाह ने मुझसे वादा कर दिया, ऐ मेरे मदनी करीम, अपने यारों को बता दो, मैं फतह मक्का जो है मक्का को फतह कराने वाला हूं। ये 10 साल यहां पे रहे मक्का की तलब में, आप इनको तैयार करें, इंशाल्लाह जाना तुम्हारा काम है, फतह देना रब रहमान का काम है। अब वो बहारें आने वाली हैं बैतुल्लाह की। तो जब सहाबा को ये सुना तो खुश हो गए सहाबा कराम, भाई वो मक्का फतह होने वाला है, और अल्लाह पाक ने ये वादा कर दिया। लेकिन मदनी करीम ने फरमाया, मेरे यारो, ये बात राज रखना, अपनी बीवियों को भी नहीं बताना, ताकि अचानक जो खुशी मिलेगी वो भी खुश होंगे, बताना किसी को नहीं। जाके चुपके घरों में अपना सामान बांधो और मक्का की तरफ जाने की ऐसा तैयारी करना शुरू कर दो। पता नहीं कौन सा दिन या कौन सी रात हो, अल्लाह कहेगा अपने यारों के साथ, चलो फतह मक्का के लिए। तो मेरे नबी के यार घरों में जाते हैं, चुपके तैयारियां कर रहे हैं, सामान इकट्ठा कर रहे हैं। बीवियां पूछती हैं, बखैर है, सामान इकट्ठे कर रहे हो, तैयारियां कर रहे हो, कहीं जाने का इरादा? वो कहते हैं, नहीं कोई बात नहीं है, बस वैसे तैयारियां करें। क्यों? अल्लाह के नबी ने जो रोका था। तो मेरे नबी का एक यार हातिब बिन अबी बलता, कलम उठाई, कागज उठाया, खत लिखा कुरैश मक्का को, उनको कहा, मैं नबी का यार हूं, अल्लाह के नबी ने फरमाया राज रखना, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, ख्याल कर लो, कुछ तैयारी करनी है तो तैयारी कर लो, अपना एहतमाम कर लो। अल्लाह के नबी अपने यारों के साथ मक्का में फतह करने वाले हैं, तुम्हारे ऊपर हमला करने वाले हैं, तैयारी कर दो। नबी का यार है हातिब बिन अबी बलता। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरा राज फाश मत करना, लेकिन अपने कागज कलम उठाया और खत लिखा कि अल्लाह के नबी फतह मक्का के लिए तशरीफ लाने, तैयारी कर लो, और मैं तुम्हें खत लिख के बता रहा हूं। औरत को दिया कि लेके चले जाओ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अभी मस्जिद नबी में बैठे, साहबा को क्या कहा कि इस बात को क्या करना है? राज रखना है। लेकिन हातिब बिन अबी बलता ने राज फाश कर दिया। वो औरत मक्का मुकरमा से बाहर निकली, अभी निकली थी तो अल्लाह ने वही के जरिए अपने पाक पैगंबर को बता दिया, कहो सुभान अल्लाह। मदनी करीम, आपने जो फरमाया राज रखना है, आपका एक यार राज नहीं रख सका, बल्कि उसने कलम दवात उठाकर आपका राज फाश कर दिया, एक औरत को दिया, कुछ इनाम दे करके जाओ मक्का वालों को कहो अल्लाह के नबी लश्कर तैयार कर रहे हैं और मक्का की तरफ आना चाहते हैं, तुम जरा संभल लो, तैयारी शारी करनी है तो कर लो, संभल लो। उन्होंने राज फाश कर दिया। तो मेरे नबी ने हजरत अली और एक और साहबी को बुलाया, फरमाया जाओ रोजा खाक पर एक औरत है, उसके पास खत है, उस खत को ले आओ। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने एक यार के साथ वहां पहुंचे रोजा खाक में, तो वो औरत वहां पे मौजूद थी, थोड़ा आराम कर रही थी। तो गए तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला फरमाया, वो खत निकाल जो लेके जा रही है। उन्होंने कहा मेरे पास तो कोई खत नहीं। हजरत अली ने फरमाया तेरे पास खत है? उन्होंने कहा कोई नहीं, ये सामान पर है, देख लो। हजरत अली ने सामान देखा, कोई खत नजर नहीं आया। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो कोई नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, मैं तेरी बात को मान लेता, लेकिन मुझे बताया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक की जबान से झूठ निकल सकता है, मदनी करीम की जबान से झूठ नहीं निकल सकता है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया, अब्दुल्लाह बिन अमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे अल्लाह के पाक पैगंबर की हर बात को लिखा करते थे। एक कुरैशी ने कहा, उन्होंने कहा हर बात ना लिखा कर, इन्नहु यतकल्लमु फिर रिज़ा वल गज़ब। कभी अल्लाह के पैगंबर गुस्से से बोलते हैं, कभी प्यार से बोलते हैं, कभी आप मजाक में बोलते हैं, हर बात ना लिखा कर।
अगले दिन देखा तो उसके हाथ में कलम दवात कोई नहीं। मदनी करीम ने फरमाया आज मेरे यार तू क्यों नहीं लग रहा था? उसने कहा मुझे फलां बंदे ने कहा, कभी गुस्से में बोलते हैं कभी हर बात ना लिखा कर। मेरे नबी ने फरमाया उक्तब कुल्ला शै ला यखरुजु मिन्हु इल्ला अल हक। और मेरे यार मेरी हर बात लिखा कर, मैं मजाक में बोलूं या मैं सीरियस होके बोलूं या मैं कोई गुस्से में बात करूं, तुम जब बोलते हो वो तुम्हारा कौल हो सकता है। मैं मोहम्मद जब भी बोलता हूं अल्लाह क़यामत तक उसको कुरान बना देता है। मैं गुस्से से बोलूं या मजाक में, वो क्या है? दीन है मेरा। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने कहा ओ मेरी साहिबा तेरी बात मान लेते, लेकिन हमें खबर किसने दी? मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। खत तेरे पास है? उन्होंने कहा नहीं है। तो अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया हम इस बात पे शक भी नहीं कर सकते, तेरे सामान में नहीं है, अब लगता है तूने बदन में छुपा रखा है, अगर नहीं निकाल के दोगी तो हम तुम्हें नंगा करेंगे, क्योंकि हमें यकीन है अल्लाह के नबी झूठ कभी भी नहीं बोल सकते। उस औरत थी वो मुशरका, लेकिन वो थी गैरतमंद। उसने कहा कि हो सकता है गैर मर्द हैं, कहीं मेरे कपड़े ना उतार दें। तो गैरत जो है ये बड़ी चीज है, अगर मुशरिक में हो तब भी क्या है? बड़ी चीज है। मैं कहता हूँ उस औरत को कमाल है कि उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या किया, उन्होंने कहा चाचा मेरे कपड़े ना उतारो, अपने बालों का जोड़ा खोला और उसके अंदर से वो खत निकाल के हजरत अली को दे दिया और कहा कि वाह तुम्हारा प्यार और यकीन मदनी करीम पर, अगर कोई और होता तो वो कह देता कि मेरे आका ने गलत कहा है, हमने सामान की तलाशी ले ली, इसके पास सामान नहीं है, लेकिन कमाल है तुम्हारा और तुम कमाल है तुम्हारे सरदार का और कमाल है तुम्हारी मोहब्बत और एतबार का कि तुमने मेरी जबान पे एतबार नहीं किया, मोहम्मद करीम की जबान पे तुमने एतबार। और ये बात है सहाबा कराम के अंदर, वो अल्लाह के नबी की जबान पे कभी शक नहीं करते। खत लेकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला वापस आए और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को दिया। मेरे पैगंबर ने खोला तो लिखा हुआ है हातिम बिन अबी बल्ता का, मेरे नबी के यार का, सहाबी का, राजबाज कर दिया। सहाबा कराम में हलचल मच गई। मेरे पैगंबर ने बुलाया सहाबा को, ये देखो काम देखो, खत राजबाज कर दिया। हजरत उमर भी आ गए और मैं पहले ही कहता हूँ हजरत उमर वो सहाबी हैं जिनका हाथ हर वक्त ट्रैगर पर रहता था। अल्लाह के नबी के दुश्मनों को उड़ाने के लिए हर वक्त हाथ किधर रहता था कि अल्लाह के नबी का दुश्मन मिले मैं उसका सर तन से जुदा कर दूं। वो आए आंखें सुर्ख तलवार लेकर, या रसूलुल्लाह क्या बात है? पर मैं हातिम बिन अबी बल्ता ने मेरा राज फाश कर दिया, बुलाओ उसको। गायब साहबी बुलाने के लिए हातिम बिन अबी बल्ता के पांव से जमीन निकल गई। अब मैं बात करूं जबान की, झूठ बोल सकते थे, उधर कोई पेश कर सकते थे, गलत बयानी कर सकते थे, लेकिन मैंने कहा अगर जबान और दिल के सच्चे हो फिर बड़े से बड़ा गुनाह भी अल्लाह माफ कर देता है। अगर जबान के झूठे हो, अमल के ठीक हो, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे नेक अमल कबूल नहीं करेगा। बात है दिल और जबान की सच्चाई की। वो सच्चा था, आया अल्लाह के नबी के सामने, हजरत उमर इंतजार में खड़े हैं कि आए मैं इसका सर क्या कर दूं, तन से जुदा कर दूं, और अल्लाह के नबी के सामने का मेरे महबूब ने फरमाया हाँ मेरा राज फाश किया, ये खत तुम्हारा है। आगे खड़ा हो गया, या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह की कसम मुनाफिक भी नहीं हूं, या रसूलल्लाह मेरे दिल में आपकी कदर और मोहब्बत कम भी नहीं हुई, अल्लाह की कसम ना मैं मुनाफिक हूं ना मैं काफिर हूं, अल्लाह की कसम अल्लाह वादा मनान पे मेरा ईमान और आपसे मेरी मोहब्बत कामिल है, लेकिन मेरा उज़र तो आप सुन लें। अल्लाह के नबी ये जितने भी आपके यार यहाँ मौजूद हैं इनका मक्का मुकरमा में कोई ना कोई रिश्तेदार मौजूद है, अगर आप हमला के लिए जाएंगे तो इनके घर वालों को वो हिफाजत कर लेंगे, लेकिन मक्का मुकरमा में मेरा कोई भी रिश्तेदार नहीं। मैंने कहा कुरैश मक्का पे कुछ एहसान कर दूं, हो सकता है मेरे घर वालों की हिफाजत कर दें, वरना ना मैं मुनाफिक हूं ना मैं काफिर हूं ना मेरी मोहब्बत आपसे कम हुई है। ये बात मैं आपको सच बता रहा हूं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा अल्लाह के नबी मुझे इजाजत दें, अज़रिबो हाज़ल मुनाफिक, मैं इस मुनाफिक की गर्दन उतारता हूं, ये झूठ बोल रहा है, इसने आपका राज फाश कर दिया, इस इजाजत है मैं गर्दन उड़ाऊं। अब हातिम बिन अबी बल्ता उधर अल्लाह के नबी की जबान की तरफ देख रहे हैं कि मेरे मदनी करीम क्या ऑर्डर करते हैं, उधर हजरत उमर की तलवार नजर आ रही है, तलवार निकाल के खड़े, इजाजत दें, बस इजाजत मिलनी चाहिए तो सर तन से जुदा हो जाता। लेकिन मेरे भाई अगर जबान और दिल के सच्चे हो तो बड़े से बड़े ऐबों पर रब खुद पर्दे डाल देता है। अभी अल्लाह के नबी वहां मौजूद थे, मेरे नबी ने फरमाया उमर तुम्हें पता नहीं हातिम बिन अबी बल्ता बदर वाले सहाबा में शामिल था, और अल्लाह ने बदर वालों को कह दिया इअमलू मा शिअतुम कद गफरतु लकुम। और मेरे बदरियों और मेरे नबी के यारों जो बदर के मैदान में खड़े हो, अल्लाह को तुम इतना राजी कर चुके हो, रब कहता है आज के बाद जो अमल भी करो मोहम्मद के यारों मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तो तुम्हें पता नहीं वो बदर वालों में है, और अल्लाह ने बदर वालों से क्या फरमाया, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। ऐ उमर
یہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے بتا دیا، یہ دل کا بھی سچا ہے، زبان کا بھی سچا ہے، جاؤ اس کو معاف کر دیں۔ تو دل اور زبان کا سچا بہت بڑا عیب تھا، نبی کا راز باز کرنا معاف ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اور عبداللہ بن ابی زبان اور زبان کا جھوٹا عمل اچھے تھے، آپ علماء سے پوچھیں، پہلے صف کا نمازی تھا عبداللہ بن ابی، اور کتابوں میں آتا ہے حدیث پاک کی کہ جب اللہ کے نبی کوئی بات کر دینا، وہ میرے یارو سنو، ابھی اللہ کے نبی فرماتے میری بات سنو، تو یہ کھڑا ہو جاتا، صحابہ کی طرف روک کر کے کہتا او چپ کر جاؤ، اللہ کے نبی جو فرما رہے ہیں یہ حق اور سچ فرما رہے ہیں، بات سنو اللہ کے نبی کی۔ یہ کھڑا ہوتا، پہلے صف کا نمازی، میرے نبی کے ہر وقت ساتھ، جمعے کا نمازی، نمازوں کا نمازی، ہر نماز میں پہلی صف پر، لیکن ادھر کہتا سنو اللہ کے نبی سچ کہہ رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی فرما دیتے باہر نکلتا تو اپنے منافقوں کو کہتا جو کچھ کہا ہے جھوٹ کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ۔ عمل دیکھو، پہلے صف کا نمازی، دل اور زبان کا جھوٹا، باہر نکل کے کہتا ہے جھوٹ بولا، لیکن پھر کیا ہوا؟ نماز بھی پڑھتا ہے، کبھی کبھی جہاد میں بھی ساتھ جاتا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتا ہے، کہتے سنو نبی کی بات، باہر نکل کر زبان اور جھوٹ الگ ہو گیا، زبان الگ ہو گئی، دل الگ ہو گیا۔ اب موت کا وقت آ گیا، بیٹا ہے صحابی، یا رسول اللہ میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیجئے، قربان جو مدنی کریم پر، جانتے تھے منافق ہے، جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے، آگے حضرت عمر آ گئے، یا رسول اللہ پڑھائیں، آپ کو پتہ ہے منافق بے ایمان، امی عائشہ پہ تہمت لگائی، لیکن قربان جو مدنی کریم پر، اور میں اس نے دل ضرور دکھایا ہے، میں مدنی کریم جنازہ ضرور پڑھوں گا، ہو سکتا ہے اللہ میرے جنازے پڑھنے پر اس کو معاف کر دے، کہو سبحان اللہ۔ آیا ہے جنازہ پڑھانے، عمر روک رہے ہیں، لیکن گئے، جنازہ پڑھا دیا، اس نے کہا یا رسول اللہ اپنا کرتا بھی دے دیں، وہ بدر والی برابری ہو گئی، حضرت عباس کو کرتا دیا تھا اس نے، تو اللہ کے نبی نے وہ برابری کر دی، کرتا بھی دے دیا، لعاب بھی رکھ لیا، اللہ کے نبی نے جنازہ بھی پڑھا دیا، قبر میں بھی اتار دیا، ابھی وہاں کھڑے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی نازل فی، اور میرے پاک پیغمبر آپ اس کا جنازہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، استغفار کریں جتنا مرضی کریں، اور میرے پیغمبر نے اللہ میں 70 دفعہ سے زیادہ کروں گا، اللہ نے فرمایا ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ، آپ اس پر استغفار کریں یا نہ کریں، 70 مرتبہ سے زیادہ بھی استغفار کریں، میں رب اس کو معاف نہیں کروں گا، میں اس کی قبر کو بھی جہنم کی آگ بنا دوں گا، قیامت کے دن بھی جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا یہ زبان کا سچا، دل اور زبان کا سچا نہیں تھا، چاہے آپ جنازہ پڑھائیں 70 دفعہ سے بھی زیادہ استغفار کریں، میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات آ گئی کہ آپ نہ پڑھائیں، یا علماء نے عجیب بات لکھی، حضرت عمر نے جب منع کیا تو اللہ نے اس وقت آیتیں کیوں نہیں اتار دی؟ اللہ کے نبی منع کریں تو اللہ کے نبی نے پڑھایا، اللہ نے پڑھانے دیا، جب منع ہی کرنا ہے تو پہلے کر لیں، تو اللہ نے یہاں مسئلہ سمجھانا تھا، ادھر عمر کی بات ہے کہ نہ پڑھائیں، ادھر مدنی کریم فرماتا ہے میں پڑھاؤں گا۔ اگر اللہ پہلے آیتیں نازل کر دیتا تو بات تو عمر کی آگے ہو جاتی نا، اللہ کے نبی کی بات تو پیچھے ہو جاتی، مدنی فرمانے کریم میں پڑھاؤں گا، تو اللہ نے مدنی کریم کی بات کو آگے رکھ کے فتویٰ عمر کی بات پہ دے دیا کہ آپ نے پڑھا دیا، آپ کا کام مکمل ہو گیا، بات عمر کی سچ ہے، جو رائے فرش پہ عمر دیتا ہے اللہ آج سے قرآن بنا کر مدنی کریم کے سینے پہ نازل کر دیتا ہے۔ تو بات کس کی ہے؟ بولو، زبان کی حفاظت کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، زبان سے کسی کو تکلیفیں مت دو، یہ تلتیر اور تلوار ہیں، اللہ کی قسم میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ اسی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ آج جتنی بھی چاوی ہے، کیا چاوی ہے؟ گھروں میں لڑائی کی وجہ کیا ہے؟ بولو۔ میاں بیوی کے درمیان طلاق کی وجہ کیا ہے؟ بولو۔ دوستوں میں جدائی کی وجہ کیا ہے؟ بولو۔ باپ اور بیٹے میں جدائی کی وجہ کیا ہے؟ بولو۔ رشتہ داروں میں جدائی کی وجہ کیا ہے؟ یہ زبان، دھوکہ، جھوٹ، گالی، غیبت اور ایک دوسرے پر بہتان دراوی، یہی زبان ہے، زیادہ استعمال ہوتی ہے، اس کی حفاظت کر لو۔ کیا کر لو؟ من سامتا من سکتا نجا، جو آدمی جو چپ کر روزہ رکھ لے، چپ کر لے، میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن وہ نجات پا جائے گا۔ اس لیے جو لفظ نکلتا ہے تمہاری زبان سے، یہ مت سمجھو کہ وہ لفظ ہے، وہ لفظ یا تو تمہیں جنت میں لے کے جا رہا ہے یا جہنم میں لے کے جا رہا ہے۔ اس لیے جو بھی لفظ زبان سے نکلتا ہے اثر رکھتا ہے، پر نہیں، پر طاقت پرواز مگر رکھتا ہے۔ اس لیے جو ہانڈی میں ہو وہی باہر آتا ہے، جو دل کے ہوتا ہے زبان سے اوپر بھی وہی آتا ہے۔ تو کس کی حفاظت کرنی ہے؟ بولو۔ یہ اسلام کی ہمیں تقاضا ہے، اسلام ہم سے طلب کرتا ہے۔ دعا یہ ہے ان دو چیزوں کی اللہ مرد دم تک ہمیں حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔